On one hand, we celebrate women as goddesses, but at the same time, we harass them on roads. On one hand, we celebrate Gandhi and preach Gandhian ideologies, but at the same time, we celebrate war-like mongerings on social media. At the same time, we talk about ecological protections, ecological consciousness, but we do not hesitate to drive modern SUVs, pumped up, throttled by diesel and other polluting spirits. At the same time, we talk about unity, fraternity, and raise pinpoint out finger those who are talking about this unity and brand them as urban nexels. But we do not hesitate to fight on the name of caste and religion with each other. Welcome to India, India of contradictions, where we say one thing and do the other thing. Maybe that Salman Khan mentality that अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, दैट इज समथिंग कि शायद जो आज हम दूसरों को कमिटमेंट करते उसको भी नहीं रिकग्नाइज करते, खुद से तो झूठ बोलने में हम शायद आज बहुत आगे निकल चुके हैं. Maybe this video may hurt your feeling to an extent, but sometimes having a reality check, having a press during the time of Indian national movement which provided us that reality check, a deep critical evaluation of oneself, deep rational analysis of oneself and our behaviors can help us in becoming better humans, and at the end better humans make better societies. लेकिन क्या एक महज इत्तेफाक है जो एग्जांपल्स मैंने दिए, या फिर रियलिटी में आर वी बिकमिंग अ सोसाइटी ऑफ हिपोक्रेट्स? लेट्स डिस्कस दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. और हाँ, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा. Some of you may know me, many of you may not know me, but anyways that's not the matter of concern. Knowing and not knowing is only part and parcel of your life. What is the meaning of hypocrisy? Hypocrisy होती क्या है? किस चीज़ को hypocrisy बोला जा सकता है? एक साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो hypocrisy का मीनिंग कुछ ऐसा सा निकलता है, saying one thing and doing another thing. कथनी और करनी में फर्क जब होता है, that person is called as hypocrites. एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो देर आर मेनी पीपल हु टॉक अबाउट कि ये पर्टिकुलर ऑप्शनल जीएस का ये कवर करता है, ये बेस्ट है, ये टॉपर्स चॉइस है, ये टॉपर्स फैक्ट्री है. बट एट द एंड डिड यू एंड आई एवर आस्क दोस टीचर्स दैट हाउ टू व्हाट एक्सटेंट, यस सर मे बी योर ऑप्शनल इज कवरिंग द जीएस पेपर, बट आर यू टीचिंग दैट, आर यू गोइंग टू टीच मी दैट इन ऑप्शनल दैट हाउ दिस टॉपिक इज कवरिंग द अदर थिंग? Without understanding that, it becomes almost impossible for you to ever use the sociological or political science or psychological or public administration or historical knowledge with respect to your papers. So that this world, whether it in the field of education or others, we are seeing people, those people are rising who are saying one thing and doing another thing. जो लोग जो कहते हैं वही करते हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं कि दे आर इमोशनल फूल्स. दे आर द पीपल हु डू नॉट लार्जली नो हाउ टू लिव अ लाइफ इन दिस मॉडर्न कलयुग. बट एट द सेम टाइम, should we not celebrate that we do have some people like that of Satyug and Kalyug who are actually maintaining the sanctity of this entire society? अगर थोड़ा सा डीप थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हिपोक्रेसी समझनी है तो डीपर सेंस में हिपोक्रेसी के साथ हम एक वर्ड जोड़ सकते हैं, नॉर्मेटिव डुप्लीकेसी, डुप्लिसिटी या डुप्लीकेसी. इसका मीनिंग क्या होता है? वेयर सोशल नॉर्म्स आर पब्लिकली अपहेल्ड बट प्राइवेटली वायलेटेड. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई डू रेकमेंड कि इसको नोट डाउन करके रखेंगे, इस वर्ड को नोट डाउन करके रखेंगे कि नॉर्मेटिव डुप्लिसिटी या डुप्लीकेसी क्या होती है. जहां पे पब्लिक स्पेयर के अंदर जो चीज आपको फॉलो करनी होती है, प्राइवेट में उस चीज को शायद ना फॉलो करो तो चलेगा.
तो जब शाहरुख खान किसी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मसाले का ऐड करता है या पर्टिकुलर किसी ऐसी चीज का ऐड करता है जिसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो ये दुनिया 2 मिनट भी नहीं कतराती है शाहरुख खान साहब को गाली निकालने के लिए। I am not a fan of Shahrukh Khan, let me tell you very clearly. But जब वही शख्स ये बोलता है कि किस तरीके से अगर ये गलत है तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। हम खाते वक्त शाहरुख खान को गाली नहीं निकालते हैं, लेकिन नहीं तो हम उस शाहरुख खान को गाली निकालेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट हिपोक्रेसी लुक्स लाइक। Therefore, what we often see कि पब्लिकली हमें कुछ चीजें फॉलो करनी है, लेकिन उसे प्राइवेट में अगर वायलेट करें तो दैट इज कॉल्ड एज गॉड डैम हिपोक्रेसीज। सोशोलॉजिकली थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि मैं सोशोलॉजी पढ़ाता हूं इसलिए थोड़ा ये डिमेंशंस, बट डजंट मैटर आप जीएस में पढ़ो या किसी में पढ़ो, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूज्ड। एक सब्जेक्ट का नाम आते ही हम अपने नाम को ब्लॉक कर लेते हैं, मैं सोशोलॉजी से थोड़ी हूं। इट डजंट मैटर, नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट का अधीन थोड़ी ना है। एक स्कॉलर आते हैं एरविन गॉफमैन, एक इतना ब्यूटीफुल अप्रोच दिया उन्होंने जो आपके और मेरे डे टू डे लाइफ के अंदर लगेगी, जिससे शायद तुम्हें यह भी समझ में आए कि सोशोलॉजी कैसे सिर्फ आपको और मुझे, आपके डेली लाइफ को और मेरी डेली लाइफ को समझाता है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने में भी अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो आई डोंट नो वेयर द रियल चैलेंजेस वुड लुक लाइक। इस अप्रोच में ये बोलते हैं हर एक इंसान 2 स्टेज पे परफॉर्मेंस रखता है। एक होता है फ्रंट स्टेज जो आप पब्लिकली रिप्रेजेंट करते हो, एक होता है बैक स्टेज जहां पे आप प्राइवेट अपनी लाइफ के अंदर हो। हम देखते हैं कि फ्रंट स्टेज के अंदर हम जो बोलते हैं ना वो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स और वैल्यू सिस्टम्स के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्राइवेट में जाते हैं तो कास्टिंग काउच जैसी चीजें मिलेगी। हम लोगों के बेटों बेटियों को तो कहीं ना कहीं झंडा पकड़ा के कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई सी भी रिलीजन हो, उनको रोड पे उतार देते हैं, लेकिन खुद के बेटे जो हैं वो ब्रिटेन के सिटीजनशिप बने हुए हैं, वो कहीं गूगल में कुछ और चीज कर रहे हैं या एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट और बिलियनियर्स बन चुके हैं। क्यों नहीं उनके बच्चे रोड पे उतरते हैं? क्यों नहीं उन लोगों के बच्चे उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं जिनकी शायद हम और आपकी और हमारे लीडर जो हमारे दिमाग के अंदर आइडियोलॉजी फिट इन करने चाहते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ हिपोक्रेसी इन द प्रेजेंट कंट्री ऑफ आवर्स, जहां पे फ्रंट स्टेज में कुछ और दिखाया जाता है और बैक स्टेज के अंदर द थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एट द लेवल ऑफ प्राइवेट स्पीयर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव प्रैक्टिसेस। क्या हम सच में बन रहे हैं, या सर आप इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बोल गए? Doesn't matter, emotions has to be expressed. The disciplines and the colleges where I've learned this is what it is. देख लेते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, एक तरफ हमारे देश के अंदर एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी है यहाँ पे जहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, किस तरीके से हमारा सेक्स रेशियो है वो या तो मैनिपुलेटिव तरीके से किया जा रहा है या फिर डॉरी डेथ्स जो है किस तरीके से प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट 1961 हो या फिर डॉरी डेथ्स हो, किस तरीके से इंक्रीज होती चली जा रही है। नॉर्थ ईस्ट और कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़ दूं तो मेजरली कहीं ना कहीं हर समाज के अंदर डॉरी डेथ्स है। 35% की टोटल डॉरी डेथ्स यूपी और बिहार दोनों मिलके 35% ऑफ द डेथ्स आर फ्रॉम दीस टू पर्टिकुलर स्टेट्स। एक तरफ डॉरी डेथ्स बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हम प्रीच कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाउ इट्स टाइम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे बढ़ के बेटी बढ़ाओ भी होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आर्टिकल 15 हमारा डिस्क्रिमिनेशन बैन करता है ऑन द ग्राउंड्स लाइक दैट ऑफ सेक्स, कास्ट एक्सेट्रा, रिलीजन। बट एट द सेम टाइम हम मैट्रिमोनियल एड्स ओपनली न्यूज़पेपर्स में देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण प्रिफर्ड। यही न्यूज़पेपर अगर मैं और आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को मार्क करके कि ये पढ़ने के लिए काम आएगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स हो सकती है। लेकिन यही न्यूज़पेपर जब अपने एड न्यूज़पेपर में देते हैं और उधर वो ब्राह्मण प्रिफर्ड लिखा हुआ है तो उंगलियां नहीं उठाते हैं कि ये हम नहीं करेंगे, दिस इज कास्टिस्ट इज नेचर। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन न्यूज़पेपर का कोई सोशल दायित्व नहीं बनता? जैसे आप सिगरेट्स या अल्कोहल के एड्स नहीं दे सकते, क्या उसी तरीके से ऐसे एड्स को भी बैन करना चाहिए जो न्यूज़पेपर का पर्सनल मॉरल एथिकल ड्यूटी है कि दे वुड नॉट बी एंटरटेनिंग सच टाइप्स ऑफ एड? आर दे नॉट वायलेटिंग द आर्टिकल 15 जो जर्नलिज्म के बेसिस के ऊपर आपको और मुझे रैशनैलिटी सिखा रहे हैं? खुद कितने पानी में है वी कैन सी दैट। जब संडे को मैट्रिमोनियल वाला पार्ट पढ़ो बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर्स में विदाउट नेमिंग वन, यू विल रियलाइज व्हाट इज हिपोक्रेसी। और आगे देखते हैं,
एक तरफ हम प्रीच करते हैं सारे धर्म बराबर है, आर्टिकल 25 to 28, एवरीबडी हैज राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस देयर रिलीजन्स, बट दूसरी तरफ जब आप इंटर रिलीजन शादी करते हो, इंटरकास्ट शादी करते हो, तो खाप पंचायत तमिलनाडु के अंदर कितनी डेथ्स हुई है पिछले 5 सालों के अंदर, अगर आप कभी फैक्ट निकाल सको गूगल से तो डू हैव अ लुक। दूसरी तरफ लव जिहाद के बेसिस के ऊपर दोस कपल्स रन एंटायर लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम किसी गैर से नहीं, अपनों से। वो सही बात है, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने मारा। वो अपने यहां पे आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी जात हो सकती है, आपका धर्म हो सकता है। इज दिस नॉट अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी, या फिर ये भी मेरा भ्रम है, या फिर इज इट अ रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एज वेल? इससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो एक तरफ हम फास्टिंग करते हैं, नवरात्रि की फास्टिंग है, सावन की फास्टिंग है, और भी बहुत सारी फास्टिंग्स है। सबको नमन है मेरा, चाहे वो रोजे की फास्टिंग हो, सबको नमन है, क्योंकि मेरे से तो ज्यादा स्ट्रांग है वो, फास्ट तो कर रहा है, मैं तो वो भी नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ क्या देखे जा रहे हैं, यही लोग क्राइम, ब्लैक मनी, इल टॉलरेंस के अंदर एंगेज होते हैं। तो क्या कथनी और करनी में फिर फर्क नहीं है? क्या वो लाइन सूट नहीं होती? हम भगवान को तो मानते हैं, बट भगवान की एक नहीं मानते हैं। तीसरी तरफ दूसरा पॉइंट, हम वी आर very proud to be Indians, and that's good. Every country, the citizens of every country should definitely be proud of their motherlands. इसमें आम बात है यार, ये होना ही चाहिए, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन वही प्राउड इंडियन सड़कों पे जुबा केसरी कर रहा होता है, spitting on road, disrespecting the rights of other citizens in the road when nobody stands up and speaks for that. क्या हमें ऐसे प्राउड इंडियन चाहिए जिनका सिविक सेंस तक नहीं आ रहा है, लेकिन देश के नाम पे वो प्राउड हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी प्राउडनेस सिर्फ और सिर्फ वो वर्ल्ड कप उठाने तक रहती है, या फिर एंटी पाकिस्तान सोशल मीडिया पे बात करने तक रहती है। अगर इतने प्राउड अगर हम हैं, तो प्राउड बिहेवियर भी हमारे बिहेवियर के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कुछ और रियल लाइफ से एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहां पे। स्वच्छ भारत तो है, लेकिन इंडिया गार्बेज क्राइसिस भी फेस कर रहा है। यमुना ले लो, गंगा ले लो, ताप्ती ले लो, नर्मदा ले लो, मल्टीपल रिवर्स ले लो, आपको दिखाई देगा कि कैसे वो नदियां नदियां कहलाने के लायक नहीं हो रही है आज। दे आर पोल्यूटेड टू द एक्सट्रीम मोस्ट एक्सटेंट। यूथ आइकॉन प्रीच तो करते हैं हॉनेस्टी, लेकिन वो इवेड करते हैं टैक्सेस। अनफॉर्चुनेटली एक वीडियो और भी बनाएंगे, क्या इंडिया के पास राइट यूथ आइकॉन्स है भी क्या आज? अभी आपने इंसिडेंट्स देखे थे, कुछ लोग किसी कॉमेडी शो के ऊपर दे आर टॉकिंग अबाउट वाचिंग देयर पेरेंट्स हैविंग सेक्स। क्या ऐसे यूथ आइकॉन होने भी चाहिए जो किसी को रोस्ट करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हो? बट सम अदर डे इस पे डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। यूथ आइकॉन प्रीचिंग ऑनेस्टी, बट दे देमसेल्व्स आर एक्चुअली इवेडिंग टैक्सेस। खुद पैसे बचाने के लिए दुबई शिफ्ट हो जा रहे हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की टैक्सेस ज्यादा होनी चाहिए, यस एक लिमिट तक है, बट एट द एंड डू वी हैव दैट सोशल ड्यूटी? Politicians fasting for Dalit, but they refuse to have food with Dalits. कितने और एग्जाम्पल चाहिए आपको और मुझे से हिपोक्रेसी के, जो किसी थियरी से नहीं निकाले हुए। यहां पे आपकी और मेरे महज डेली लाइफ से ये एग्जाम्पल्स आए दिन हमें सड़कों में आसपास भटकते हुए मिल सकते हैं। ये हिपोक्रेसी की राइजिंग टेंडेंसीज अमॉन्ग यू एंड अमॉन्ग मी एंड इन मी। अब सवाल ये आता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे सवाल उठा सकते हो कि साहब ये सर आपका परसेप्शन है, आप फालतू आइडियलाइज मत करो। क्यों? आप किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग कर सकते हो, किसी एक धर्म से बिलोंग कर सकते हो, किसी एक और जगह से बिलोंग कर सकते हो। यस, आपको फुल हक है टू पुट अप दैट पर्टिकुलर कमेंट ओवर हियर एंड यू कैन क्रिटिसाइज मी, दैट डजंट मैटर। बट रियलिटी में चलो मान लेते हैं ये तो शायद मेरा इमोशन बोल रहा होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दीज फैक्ट्स हियर व्हिच आर प्रेजेंट? ऑक्सफैम रिपोर्ट बोलता है इंडिया अमॉन्ग टॉप इन इनकम इनइक्वालिटी। सबका साथ सबका विकास प्रीच करने वाले आज शायद हमारा ही देश सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की इनकम इनइक्वालिटी है। कहां गया सबका साथ, कहां गया सबका विकास, कहां गया सबका विश्वास? वर्ल्ड वैल्यू सर्वे, हाई रिलीजियोसिटी है हमारे अंदर,
कि साहब लो एथिकल बिहेवियर है। मैं तो ये मानता था कि रिलीजन जो है एथिकल बिहेवियर सिखाती है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन रेस्पेक्टफुली बोल के गए कि रिलीजन को सेपरेट नहीं करना है स्टेट से, क्योंकि शायद हमारी एथिक्स जो है, वैल्यू जो है, पॉलिटिक्स को ज्यादा एथिकल बना देगी। लेकिन वो साहब ये भूल गए थे शायद कि आने वाले लोग में प्लेटो के गोल्ड क्वालिटी वाले लोग नहीं मिलेंगे, वो सिल्वर और आयरन क्वालिटी वाले लोग मिलेंगे जो अपने हित के लिए हॉब्स को राइट प्रूव कर सकते हैं दैट वी कैन किल आवर ओन चिल्ड्रन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ आवरसेल्व्स। मैं नहीं बोल रहा हूं, हॉब्स को कोट किया है। क्या चल रहा है? रिलीजियोसिटी बहुत है हमारे अंदर, एथिकल वैल्यूज के ऊपर हम सवाल खड़े करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे कहता है। चलो ये भी नहीं मानना है, कोई बात नहीं है, फॉरेन वाले हैं सर, मैनिपुलेट तो करेंगे वो लोग, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेट्स लुक इनटू लोकनीति का सर्वे। हाई इंटॉलरेंस अमंग यूथ डिस्पाइट फॉर्मल सेक्युलर एजुकेशंस। आप और मैं शायद आज सेक्युलर एजुकेटेड है, बट आप और हम ही सबसे ज्यादा रिलीजियस वायलेंस में एंगेज हो रहे हैं। वो 60 साल के बुजुर्ग जिनको आप कल तक बोल रहे थे ये ज्यादा रिलीजियस है जेन जी से, तो वो एंटी रिलीजियस स्टैंड लेने से पहले जरूर एक मिनट सोचना कि वो ज्यादा रिलीजियस है या तुम ज्यादा रिलीजियस हो या मैं ज्यादा रिलीजियस हूं। एनसीआरबी का डेटा, सरकारी डेटा है, ये बोलता है इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिस्पाइट सेंसिटाइजेशन ड्राइव। हमें बार बार जागरूक कराया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, gender budgeting, gender equality, different notions of equalities and its perceptions and pragmatist aspects of it. But at the same time हम आए दिन कहीं ना कहीं वुमेन के ऊपर वायलेंस इंक्रीज करते हुए देखा जा सकता है। एनसीआरबी का हमारा सरकारी डेटा बोल रहा है ये। तो क्या ये एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है, या फिर अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी मैंने सेलेक्टिवली यूज किए हैं, तो फिर ये मुद्दा खत्म ही हो गया। लेट्स एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट अ सोसाइटी ऑफ हिपोक्रेसी। रूट कॉज क्या है इस हिपोक्रेसी के चलो सर ये सारे फैक्ट देख के मैं ये तो मान लेता हूं कि शायद आज हम हिपोक्रेसी की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, लेकिन इतनी दुख मत करो, एक सिल्वर लाइनिंग है यार दोस्त इसके अंदर। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑलमोस्ट हर समाज जो है एक हिपोक्रेसी की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। अच्छा आप सुकून मिल रहा है? नहीं, सुकून मिलना चाहिए हिपोक्रेसी को ठीक करके, ना कि दूसरा भी हिपोक्रेसी हो रहा है, हिपोक्रेट हो रहा है, उससे हमें सुकून नहीं मिलना चाहिए। अब इनकी रूट कॉज है क्या है कि वर्ल्ड में इतनी हिपोक्रेसी बढ़ क्यों रही है? इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन, हम इंडिया में हैं इसलिए थोड़े से डेटा इंडिया के डिस्कस किए। सबसे पहला कॉज सोशलाइजेशन ऑफ ड्यूअल मोरालिटी। ये वर्ड जरूर नोट करके रख लें जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल हमें पढ़ाता है रूल्स और वही फैमिली हमें सिखाती है उन्हीं रूल्स के लूप होल्स। ये ड्यूअलिटी ऑफ बिहेवियर जब होता है तब आता है ऑटोमेटिकली हिपोक्रेसी, बिकॉज इट मेक्स हिपोक्रेटिक बिहेवियर एक्सेप्टेबल। सोसाइटी प्रेज करती है जस्ट कर लो को और नकार देती है जब आप किसी चीज पे स्टैंड लो। यही वीडियो ले लो, हो सकता है बहुत सारे लोगों को हर्ट करे ये चीज। क्यों? हमारा आदत बन चुका है जस्ट कर लो यार, अच्छी बातें बोलो यार सिर्फ। लेट्स बी प्रैक्टिकल पॉजिटिव, लेट्स नॉट जस्ट बी कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट। वाई पॉजिटिव इन नेचर? एक प्रैक्टिकल तरीके से पॉजिटिव हो, स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम्स। स्टैंड लेने वालों को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, यहाँ पे सिस्टम में साथ चलने वालों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे वो खेमका सर हो या चाहे वो ऐसे कोई बहुत लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हो। तो एक रीजन है हमारा बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट, ड्यूअलिटी ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ पे दो तरीके से सोशलाइजेशन की जाती है कि थियरी में कुछ एक्सेप्ट करना है, आंसर लिख के आना है क्योंकि मार्क्स लेना है, रियलिटी में आप जैसा चाहो वैसे करो, चाहे वो यूपीएससी इंटरव्यू हो। दूसरा एक रीजन बनता है डीप कन्फॉर्मिज्म। लेट्स एक्सेप्ट दिस कि आपकी और मेरे लाइफ में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है, इश्यूज जो है, हम अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं दूसरों के लिए। इतने एक्सेसिव कन्फर्मिस्ट हो चुके हैं हम कि हम लोगों का कोई अपना थॉट बच ही नहीं गया है। वी आर अप्रूवल हंग्री पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। चाहे किसी जगह चाय पीना हो, नाइट आउट करना हो, एक एग्जॉटिक टूरिस्ट प्लेस जाना हो, मोबाइल खरीदना हो, कपड़े पहनना हो, वो लोगों के लिए पहने जाते हैं, अपने खुशी के लिए नहीं पहने जा रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं पहने जा रहे हैं। अब जब इतना कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं
उस कन्फर्मिज्म के अंदर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है पब्लिक में ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर, और प्राइवेट में हम क्योंकि अपने हिसाब से रह पाते हैं तो वहां पे आने लगती है ड्युअलिटी ऑफ बिहेवियर, एंड दैट मेक्स यू हिपोक्रेट्स। इसका एक बहुत बढ़िया जीता जागता एग्जांपल है हमारा कंपैरिजन जो चाइना से है। हर चीज में इंस्टाग्राम में आए दिन मैं कोई ना कोई एक वीडियो देखता हूं, कभी फेवर में कभी अगेंस्ट में, चाइना के साथ इंडिया का कंपैरिजन है। सब लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इकोनॉमिक्स में हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है चाइना के सामने। लेट्स बी क्लियर, इंडिया में बैठ के चाइना से कंपेयर करना बहुत आसान है। जब चाइना जाओगे तो तुम सबसे पहले उस कंपैरिजन को छोड़ चुके रहोगे। दूसरी चीज, साहब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम कंपेयर कर रहे हैं एक ऑटोक्रेटिक कंट्री के साथ, तो क्या वो कंपैरिजन वैलिडिफाई भी किया जा सकता है? आई मीन, इज इट possible to compare an autocracy with a democracy? बट हम अप्रूवल लेना चाहते हैं कि साहब देखो उधर हमने ये किया, ये हमारा गुजरात मॉडल, ये हमारा दिल्ली मॉडल, ये हमारा ये मॉडल। अरे कम ऑन, वो मॉडल गुजरात में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बिहार में, बंगाल में या कश्मीर में चला होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी दैट पीपल आर डिफरेंट, दैट दोस मॉडल्स नीड नॉट बी सुटेबल हियर। तीसरा जो मेजर रीजन मुझे लगता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉफिटेबिलिटी। आजकल हिपोक्रेसी क्या है, बेनिफिशियल हो चुकी है। एक टाइम था जब शायद जान जाए जुबान नहीं जाए, तो लोगों को वैल्यू करते थे। आज आपकी सहूलियत के लिए, जैसे आप चमेलियन बनना चाहते हो, कलर या रंग बदलना चाहते हो, वो एक्चुअली वैल्यू किया जाता है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज प्रॉफिट, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज नंबर्स। योर एथिक्स आर नोवेयर व्हिच मैटर्स और डिटरमाइंस योर स्टेटस इन सोसाइटीज। योर कार, योर क्लोथ्स, योर जॉब्स, योर यस बॉस मेंटालिटीज आर द थिंग्स व्हिच आर वैल्यूड इन द सोसाइटी टुडे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हो क्या रहा है, कुछ लोग हिपोक्रेट्स है क्योंकि वो इलेक्शन जीत जाते हैं, कुछ लोग हिपोक्रेट्स है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स बेच लेते हैं, आपको देश की मिट्टी से देश को बनाते हैं डैश टाइल्स बोल के, और आपको ये लग रहा है साहब मैं तो देश के लिए कुछ कर रहा हूं, वोकल फॉर लोकल। और रियलिटी में उस लोकल के अंदर कितना एक्सटर्नल फंडिंग हो रहा है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट। So people often become hypocrites because the hypocrisy starts giving them benefits. अब अगर पूछा जाए व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, अगर कोई समाज हिपोक्रेसी की तरफ टिल्ट हो रहा है, यहाँ आप और हम हिपोक्रेट्स बन रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इफ यू लुक, सबसे बड़ी इम्पैक्ट जो मुझे लगती है, एक मिसट्रस्ट होने लग जाता है। आज आपको और मेरे को देख के देखो, आप छोटे छोटे आपके और हमारे एक्शंस को देखोगे ना तो पता चलेगा आपको, if you don't trust people, the biggest problem is this. एक छोटी सी टूथब्रश भी अगर आपको खरीदनी होगी ना इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो आप अमेजोन में 5 रिव्यू चेक करोगे, अरे 150 रुपए की चीज के लिए आपने 1.5 घंटे बर्बाद कर दिए उधर। क्यों? ट्रस्ट नहीं हो रहा है यार। कैसा होगा? अरे सर बोल रहे हैं सोशियोलॉजी का हर टॉप टू बॉटम टॉपिक कराएंगे, बट वो ट्रस्ट नहीं होता ना सर। आज तक बोल बोल के थक गया मैं, मेरे नोट्स पढ़ लो सोशियोलॉजी में और कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें, यूपीएससी के लिए एटलीस्ट। लेकिन फिर भी हर बार यही सवाल आता है, क्या सर नोट सफिशिएंट है? ट्रस्ट नहीं होता है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है। कोई ऑटो वाला अगर आपको एक फ्री राइड देता है ना, तो आप हमेशा चौकन्ने, और क्यों दे रहा है ये फ्री में? क्योंकि वो ट्रस्ट खत्म हो गया यार। ये हिपोक्रेटिक बिहेवियर और सोसाइटी के लक्षण होते हैं। जब समाज में ट्रस्ट खत्म होना चालू हो जाए तो याद रखना कि समाज कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी की तरफ चल रहा है, एंड दिस इज द रिपरकशंस ऑफ लार्जली अ सोसाइटी व्हिच बिकम्स हिपोक्रेटिक इन नेचर। रियल इश्यूज से दूसरा इंपैक्ट, रियल इश्यूज से अटेंशन खत्म कर देता है ये। एग्जाम्पल, बिकॉज हमारे सिंबॉलिक गेस्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जेन्युइन रिफॉर्म से। हिपोक्रेट्स क्या करते हैं, चीजों को इस तरीके से घुमाई जाती है कि आपको असली मुद्दा कभी समझ में ही नहीं आएगा। I'll not name such leaders or political parties because the goal here is not that, it's only to understand our society better. आए दिन हम ऐसे लोग देखते हैं कि अपनी बोली हुई बातों से मुकर जाते हैं वो लोग। अब हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि अल्टीमेटली मैटर कर रहा है आपके जेस्चर्स, रियल इश्यूज और मुद्दा थोड़ी मैटर कर रहा है। अरे सर ये तो छोटी सी बात है, इसको छोड़िए ना सर। अरे
एक समाज में जब हिपोक्रेसी आने लगती है तो रियल मुद्दे कभी सामने नहीं आते। एग्जाम्पल देता हूं, अभी रिसेंटली एक ईपीडब्ल्यू का आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वर्क पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन। पिछले 25 सालों के अंदर ये रेट गिरी, 15-20 सालों में, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आ रहा है। 2019 के बाद में, इनफैक्ट कोविड के बाद में टेक्निकली ये बढ़ना स्टार्ट हुई, तो लोगों ने बोला वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। जब उस डेटा को डीपली स्टडी किया मैंने, तो पता चला कि वो ज्यादातर जो वुमेन एम्पावरमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी, कैजुअल वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है, जिनके पीछे वेज डिस्पैरिटीज होती है, मिनिमम वेजेस नहीं होती है। क्या वो रियलिटी में वुमेन एम्पावरमेंट है फिर? अब ये फैक्ट दिखा के तुम्हें चमकाया जाएगा कि देखो हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन जब उन फैक्ट के अंदर गौर से देखोगे तो आपको पता कुछ और ही चलेगा। लेकिन वो देखने वाले नहीं होंगे, क्यों? समाज जो है सिर्फ सिंबॉलिक गेस्चर पे चलता है, एग्जैक्टली जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। और जब रियल मुद्दे गायब हो जाते हैं किसी देश से, किसी फैमिली से, किसी इंसान से, किसी के दिमाग से, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसका और जीता जागता एग्जांपल देता हूं। सर, ऑप्शनल चूज करना चाहिए जो जीएस के कंपैटिबल हो। ये सबसे बड़ा मिथ है ऑप्शनल सेलेक्ट करने का। इस मिथ में ना जाने कितने एस्पिरेंट्स डह गए, बह गए। ऑप्शनल वही चूज करना चाहिए जो इंटरेस्टिंग लगे तुम्हें, जिसमें तुम लिख सको, समझ सको। अब ये इस मिथ में तुम्हें रखा जाएगा तब तक जब तक पॉसिबल है तुम्हें रखना, और जब तक वो दे कैन गेट एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ऐसा कोई एक ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल बता दो यार मुझे। अब ओपन बोल रहा हूं, आई स्टॉप टीचिंग। लिटरेचर्स को छोड़ के ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल बता दो जो जीएस का पेपर कवर नहीं करता है, 1 2 3 4। हर कोई ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल आपको पर्सपेक्टिव देता है, डायरेक्टली हर चीज कवर होती है वहां पे, बट मुद्दा है कि क्या आंखें हमारे पास है वो। इस भ्रम में आधे से ज्यादा लोग गलत ऑप्शनल चूज कर लेते हैं कि इतना बड़ा ऑप्शनल ले लिया है कि वो एक छोटे से 5 पॉइंट को कवर करने के लिए। That's ultimately your choice. What we need, अब इस सोसाइटी से बाहर कैसे निकला जाए, इस हिपोक्रेटिक टेंडेंसी से खत्म कैसे किया जाए इस चीज को? पहला, वर्च्यू सिग्नल से वर्च्यू प्रैक्टिस। ये टर्म्स आप यूज कर सकते हो आपकी राइटिंग्स में। हमें सिर्फ वर्च्यू दिखानी नहीं है, आपको वर्च्यू को फॉलो करना है। दिस इज द रियल एस्पेक्ट विच इज रिक्वायर्ड। फ्रॉम परफॉर्मेंस मोरालिटी टू लिव्ड एथिक्स। हमें परफॉर्मेंस और नंबर्स पे फोकस नहीं करना है, हमें रियलिटी में लिव करना है उन एथिक्स को। सिर्फ यहां आके भाषण देना है, एथिकलिटी नहीं होनी चाहिए। यहां पे ये होना चाहिए कि आप यू लिव ऑन दोज एथिक्स। तो एडमिशन के टाइम बोलना कि सारे सिलेबस का पार्ट कवर करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, इज समथिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मोरालिटी। लेकिन क्या आपने उसे लिव्ड किया? And if any of my student is following this session, please do type it. Kya did I live those ethics which I am teaching you right now in the entire 5.5 to 6 months in your entire optional classes? If I have, then at least as a Guru Dakshina, do put up a comment on there. Next, from blaming society alone to changing ourselves. और real मुद्दा, हर चीज का ब्लेम समाज में नहीं है। सर वो नहीं आता है, सर वो नहीं आएंगे, सर वो नहीं करेगा। अरे मत करो, तुम तो अपना शिद्दत से काम करो। कैसे बदलेगा समाज? अरे समाज बदले ना बदले, 5 लोग जो तुमसे जुड़े हैं उन पे तो कुछ इंपैक्ट होगी। व्हेन यू एटलीस्ट डोंट एक्ट लाइक एन हिपोक्रेट। हाउ कैन दिस बी डन? ये जो सारी चीजें, घटनाएं आपने बताई, सर इतना बड़ा भाषण चल रहा है इधर, ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है सर? कैसे मैं कन्वर्ट करूं इन चीजों को? तो ऑन लाइटर नोट बताऊं तो ये 2 चीजें करके की जा सकती है। पहले इस वीडियो को शेयर कर देना, दूसरा इस कोर्स में ज्वाइन कर लेना ऑन अ लाइटर नोट। रियलिटी में क्या करना है साहब? रियलिटी के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर को तुम याद रखोगे, उनसे इंस्पायर होकर एक चीज बोल रहा हूं। द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड टुडे इज दैट द वाइज पीपल आर फुल ऑफ डाउट एंड फूल्स एंड फैनेटिक्स आर सो श्योर अबाउट देमसेल्व्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, द वाइज पीपल आर फुल ऑफ डाउट and the fools and fanatics are so sure about themselves. प्रॉब्लम आज देश में हिपोक्रेसी की इसलिए है, हमारे या किसी भी देश में, क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं ना वो चुप हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है वो चुप है, और जो सबसे महाबेवकूफ लोग हैं वो दिन भर बोलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज लैकिंग। कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकली? रियल सॉल्यूशन,
Next time you are about to blame someone for something, just ask one question: do I really actually live this, what I'm preaching? And if you're able to do that, that's the end. If you're able to do that, then you have at least rejected the hypocrisy present in the society. Because solution कोई externally नहीं हो सकते हैं. The society becomes Hippocratic because you and I became Hippocratic. The day we start changing our, we start mending our behavior, there is a possibility, there is a scope that tomorrow the society would definitely change. Because mind you, friend, non-individualistic societies and completely individualistic, complete individualism both do not exist. समाज हम बनाते हैं और समाज भी हमें बनाता है. और अगर हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, तो इफ आई चेंज, if not the entire societies, those aspects of societies connected with me like a dot definitely changes. So if you're interested, you can join this batch.